ستارہ خداوند یسوع مسیح کا نشان میل ملاپ، دوسروں سے پیار اور محبت کرنے کی بات. تو ہم موعظہ کریں گے. مسیح خداوند میں عزیز و آمد کے یہاں نہایت ہی خوبصورت موسم ہے جس میں تمام مسیح قوم روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کرتی ہے کہ خداوند کی آمد پر ہم یسوع مسیح کو خوش آمدید کہہ سکیں. آج آمد کی تیسری شمع، آج آمد کی چوتھی موم بتی روشن کی جاتی ہے جو ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ ہم کس طرح محبت اور امن میں بڑھیں. آئے خدا سے خاص فضل اور برکت حاصل کریں تاکہ ہم آمد کے چوتھے اتوار کا آغاز کر سکیں. توبہ کا عمل. میں اپنے سارے دل سے پشیمان ہوں. میں نے تیری بےغدری کی اور تجھے کیا بھلا کیا. میں نے سناؤں سے نفرت کرتی کہ مجھے تو دشمن خوش کرتے ہیں. اے میرے خدا جو سب کے لائق ہے اور میں تجھ سے ارادہ کرتی ہوں تیرے پاک فضل کی مدد سے میں ہرگز ناراض نہ ہوں گی بلکہ گناہوں کی راہوں سے کنارہ کروں گی. اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر. اے خداوند رحم کر. دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں. اکاد مطلق آسمانی باپ، جب کہ ہم تیرے حضور آ کر تجھ سے اپنی محبت کو ثابت کرتے ہیں، بخش دے کہ یہ محبت دن بدن مضبوط ہوتی جائے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے. آمین. پہلی تلاوت میکا نبی کی کتاب، اس کا 5واں باب، پہلی 4 آیات. اس میں تذکرہ ہے تجھ میں سے وہ نکلے گا جو اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا. خداوند کا فرمان ہے کہ اے بیت الحم افراطہ جو یہودیہ کے گھرانوں میں کم ترین ہے، تجھ ہی سے میرے لیے وہ نکلے گا جو اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا، اور جس کا صدور قدیم سے بلکہ زمانے سابق سے ہے. اس لیے وہ ان کو ترک کر دے گا جب تک والدہ ولادت سے فارغ نہ ہو. تب اس کی باقی بھائی اسرائیل کے پاس واپس آئیں گے اور وہ کھڑا ہوگا اور خداوند کی قدرت سے اور خداوند اپنے خدا کے نام کی عظمت سے ان کی گلہ بانی کرے گا. وہ قائم رہیں گے کیونکہ وہ اس وقت انتہائی زمین تک بزرگ ہوگا اور وہی سلامتی ہوگا. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. ہمارے لیے اس کا جماعتی جواب: اے لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر، اے لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر، اور اپنے چہرے کا نور ہم پر چمکا اور ہم بچ جائیں گے. اور اپنے چہرے کا نور ہم پر چمکا اور ہم بچ جائیں گے. اے اسرائیل کی چوپان سن لے، اپنے کروبیوں کی تخت سے جلوہ گر ہو. اپنی قوت کو بیدار کر اور ہمیں بچانے کو آ. جماعتی جواب: اے لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر اور اپنے چہرے کا نور ہم پر چمکا اور ہم بچائیں گے. اے لشکروں کے خدا لوٹا، آسمان پر سے نگاہ کر کے دیکھ اور اس تاج کی خبر لے جسے تیرے داہنے ہاتھ میں لگایا ہے. جماعتی جواب: اے لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر اور اپنے چہرے کا نور ہم پر چمکا اور ہم بچائیں گے. تیرا ہاتھ تیرے یمین کے مرد پر ہو، یعنی اس ابن انسان پر جسے تو نے قوت عطا کی ہے.
پھر ہم تجھ سے برگزشتہ نہ ہوں گے، ہمیں زندگی عطا کر اور ہم تیرا نام لیا کریں گے۔ جمعیتی جواب، اے لشکروں کے خدا، ہم کو بحال کر اور اپنے چہرے کا نور ہم پر چھا اور ہم بچ جائیں گے۔ دوسری تلاوت مقدس پالوس کے خط عبرانیوں کے نام اس کا 10واں باب 5 سے 10 آیات تک، اس میں پالوس رسول کلیسیا کے لیے پیغام دیتے ہیں، میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بچا لاؤں۔ اے بھائیوں، اس وقت مسیح نے دنیا میں آ کر کہا، قربانیاں اور نذرانے تو نے نہ چاہا، لیکن تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ سوکنی قربانیاں اور خطا کے ذبیحے تجھے پسند نہ آئیں۔ تب میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں، تومار کے سرے پر میری بابت لکھا ہے، تاکہ اے خدا تیری مرضی بچا لاؤں۔ اور یہ کہہ کر کہ قربانیاں اور نذرانے اور سوکنی قربانیاں اور گناہ کی قربانیاں تو نے نہ چاہیں اور وہ تجھے پسند نہ آئیں، حالانکہ وہ بمطابق شریعت گزرانی جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہہ کر کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی بچا لاؤں۔ وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے۔ اس کی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے بدن کے ایک ہی بار قطعی طور پر قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ راتوں میں روشن کرنی اے یسوع تیری انجیل، راتوں میں روشن کرنی اے یسوع تیری انجیل۔ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ راتوں میں روشن کرنی اے یسوع تیری انجیل، کر دے اپنے جیون سے اے یسوع میری زمین، راتوں میں روشن کرنی اے یسوع تیری انجیل، اے یسوع تیری انجیل، اے یسوع تیری انجیل۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق اس کا پہلا باب 39 سے 45 آیات تک۔ انہی دنوں میں مریم اٹھ کر جلدی سے کوہستان میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الزبات کو سلام کیا، اور جو ہی الزبات نے مریم کا سلام سنا تو بچہ اس کے باطن میں اچھل پڑا، اور الزبات روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے باطن کا پھل مبارک ہے۔ میرے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی تو بچہ میرے باطن میں خوشی سے اچھل پڑا، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ کی چوتھی مومبتی کو روشن کریں گے۔ جان صادق کے خاندان سے درخواست ہے کہ آمد کی چوتھی مومبتی کو روشن کریں۔ ایک دفعہ پھر ہم آج کے اس
کرتے ہیں تاکہ جو آج مقدسہ مریم اور ماں مریم اور اس بات کی بات چیت بھی اچھے طریقے سے جائے پھر کلام کی اقتباس کی طرف بڑھیں۔ انہی دنوں میں مریم اٹھ کر جلدی سے کوہستان میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الصبات کو سلام کیا، اور جو ہی الصبات نے مریم کا سلام سنا تو بچہ اس کے بعد میں اچھل پڑا اور الصبات روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے باطن کا پھل مبارک ہے۔ میرے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی؟ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی تو بچہ میرے باطن میں خوشی سے اچھل پڑا، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہو گئی۔ یہاں تک آج کا انجیلی اقتباس کا۔ آج کے دن ہم اس انجیلی اقتباس کو اگر غور کریں تو اس میں بہت سی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں، بہت سی باتیں اس میں خدمت گزاری بھی ہے، اس میں فکر مندی بھی ہے، دوسروں کے لیے پیار بھی ہے، دوسروں کے لیے ہمدردی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی رشتہ داری کے حوالے سے بات چیت بھی نظر آتی ہے۔ اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ماں مریم جو منصوبہ اسے دیا گیا اور جو فرض اسے دیا گیا اس کو نبھانے میں اپنا کردار ایسے طریقے سے پورا کرتی ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹتی کہ اس منصوبے سے ہٹ جائے یا اس کام سے پیچھے ہٹ جائے، نہیں، اس کام کے لیے اچھے اور ایسے طریقے سے جو ہے پائے تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ جبرائیل فرشتے نے آ کر اسے بتا دیا تھا جو منصوبہ ماں مریم کے وسیلے سے ہے یا اس کے بعد الصبات میں جو ہے پائے تکمیل تک پہنچتا ہے کہ کس طرح جو ہے خداوند نے بے اولادی کے حوالے سے جو کئی سالوں پر محیط تھی خدا نے فضل سے مالا مال کیا ہے۔ لکھا کلام مقدس میں انہی دنوں مریم اٹھ کر جلدی سے کوہستان میں یہودا کی ایک شہر کو گئی۔ اب میں غور کر رہا تھا کوہستان بیابان کوئی آسان رستہ نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ کوئی آسان رستہ تھا، بس پہ بیٹھے، چراغ پہ بیٹھے، مسجد پہ بیٹھے اور چلے گئے 2 گھنٹے کے بعد وہاں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سفر جو تھا وہ جانوروں پر پورا ہوا، کئی دن ہو سکتے ہیں، کئی گھنٹے ہو سکتے ہیں، 12 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، آپ کی طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر یہ ہمیں کوہستان کی جو بات کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ دشوار ترین رستہ جو ہے ماں مریم نے طے کر کے الصبات کے پاس جاتی ہے۔ کیوں اس پر پاس جاتی ہے؟ کیونکہ اسے خدا نے اپنے خاص فضل سے نوازا تھا، کیونکہ فرشتہ اس سے کہتے ہیں تیری الصبات پر بھی، الصبات جو تیری بہن ہے اس پر بھی خاص فضل ہوا ہے، اور خدا نے اپنے خاص فضل سے اسے مالا مال کیا، اور زندگی کے گھر میں داخل ہو کر الصبات کو سلام کیا۔ اب آ کر یاد رکھیں باپ آسمانی نے فرشتے کے ذریعے بتا دیا ہے کہ تو نجات دہندے کی ماں ہے، وہ مخلصی دینے جو آ رہا ہے اس کی ماں ہے، جس کی پیشن گوئیاں کئی سال پہلے اشعیاء نے، ارمیا نے، انبیاء نے کی ہے، اس کی ماں ہونے کے لیے تجھے چنا گیا ہے۔ تو مقدسہ مریم یاد رکھیں اس کی کتنی حلیمی ہے، کتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا عہدہ، اتنی بڑی ذمہ داری سے سونپ دی گئی ہے، مگر پھر بھی داخل ہوتے ہوئے ذکریہ کے گھر میں پہلے کیا کر رہی ہے؟ وہ الصبات کو سلام اس نے خود کیا ہے۔ آج ہماری زندگی میں 4 لوگوں کی سپروائزنگ مل جاتی ہے تو ہم اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں۔ مقدسہ مریم کی زندگی میں حلیمی دیکھیں کہ اندر جا کر خود سلام کرتی ہے، اور جیسے ہی یاد رکھے سلام کیا اور انہی دنوں میں الصبات، اور جو ہی الصبات نے مریم کا سلام سنا تو بچہ اس کے باطن میں اچھل پڑا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا منجی دو عالم، مخلصی دینے والا، رہائی دینے والا خود چل کے اس کے پاس آ گیا، اس کا خدا اس کے پاس آ گیا، اس کا نجات دہندہ اس کے پاس آ گیا۔ اس نے اپنے باطن میں مقدسہ مریم جیسے سلام پیش کرتی ہے، یوحنا اس تباہی پتے باطن میں خوشی کا
मकस्सा मरियम के सलाम से यूहन्ना इस्तेबागी जो है मसा हो जाता है, मखसूस हो जाता है और खास से जो है बरकत मिल जाती है। इसलिए वो खुशी से इस खुशी का इजहार अपनी उछल जाने से करता है। और जब ये अमर होता है तो याद रखें, हम देख सकते हैं कि किस तरह कलाम मुक़द्दस हमें बयान करता है। और इस बात और इसी के साथ जैसे सलाम सुना है उसके समाज से टकराया है तो बच्चा उसके बातन में अपनी वेलकम होने का जो है खुदावंद यीशु मसीह को इकरार करता है। और फिर इसके साथ ना सिर्फ बात यहाँ तक महदूद रहती है बल्कि इस बात भी रूह से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जिसके अल्फाज कहने से, जिसके बोलने से, जिसकी लब कुशाई करने से याद रखें जब रूह से बढ़ जाते हैं, रूह से मसा हो जाते हैं, रूह की मामूली आ जाती है, रूह का मसा आ जाता है, तो याद रखें वो फरिश्तों कि इस सलाम की जो से आपका फरिश्ता भी सलाम कर रहा है वो बड़ी हस्ती का हामिल है। फरिश्ता कहते हैं अलिफ से लेकर ये तक किसी बड़े से बड़े जो है नबी को किसी छोटे से छोटे फरिश्ते ने सलाम नहीं किया। और याद रखें जिब्राइल मुकर्रब फरिश्ता है, मुकर्रब फरिश्ता जो उसको सलाम करता है। और फिर क्या होता है याद रखें, जैसे फरिश्ता सलाम करता है वो रूह से भर जाती है और खुदा का मंसूबा उसे बताया जाता है। और फिर आकर जो है मां मरियम जब अलिस्बात को सलाम करती है और फिर अलिस्बात भी रूह से भर जाती है। और फिर जब वो रूह से भरती है वो बैठकर भी बैठी नहीं रहती। इसलिए जब रूह का मजा हमारी जिंदगी में आ जाता है हम अपनी जिंदगी में महसूस कर लेते हैं खुदा का मजा हमारी जिंदगी के साथ साथ आ चुका है। तो याद रखें हम भी झूम उठेंगे, रूह से भरपूर हो जाएंगे, रूह का मजा अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे। काहिन पीछे मौजूद है, अगर आप इतराफ के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अपनी जिंदगी में हमने देखना है कि जब हमारी जिंदगी में रूह काम करता है तो हमारी हरकत और सकनात क्या है। और बुलंद आवाज से कहा कलाम मुक़द्दस में कि इस बात करके बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी, क्या कहने लगी, वो मकस्सा मरियम की शान अक़दस बयान करती है। वो जो हक है मां मरियम का उसे बयान करती है जिसकी वो हकदार है, जिस ओहदे के लिए, जिस मर्तबे के लिए खुदा ने उसे चुन लिया है, खुदा ने मुकर्रर कर दिया है, खुदा ने उठा दिया है, उसके लिए उसको कहती है तू औरतों में क्या है, मुबारक है। अम्मा हवा से लेकर मकस्सा मरियम तक जितनी भी ख़वातीन इस दुनिया में आई कहा गया कि तू औरतों में मुबारक है। याद रखें ये बड़ा मर्तबा है, बड़ा मर्तबा है, बड़ा ओहदा है जो उसे सौंप दिया गया। और कहा गया तू औरतों में मुबारक है। नस्ल इंसानी की हर औरत जिस रोए ज़मीन में पैदा हुई है अम्मा हवा से लेकर मकस्सा मरियम तक सब में से मुबारक करार दिया गया है। और जब मां मरियम को मुबारक करार दिया गया तो याद रखें ये कोई छोटी बात दूर मानी हुई। और जैसे ही कहा गया कि औरतों में मुबारक है, ना सिर्फ बात यहां तक रुकी बल्कि कहा गया तेरे बातन का फल भी जो है मुबारक है, जो आने वाला है, जो मुखरिसी देने वाला है, जो निजात देने वाला है वो भी मुबारक है। वो पाक है, वो पाक हस्ती है, उसके वसीले से पाक हो जाएंगे। वो जिसे छुएगा वो पाक हो जाएगा, क्या वो जिसको छुएगा वो पाक हो जाएगा, वो जिसे छुएगा शफा पा लेगा, क्या उसको जो छुएगा शफा पा लेगा, जिंदगी पा लेगा, अपनी जिंदगी हासिल कर पाएगा। और इसी के साथ फरमाया जाता है तेरे बातर का फल मुबारक है। और फिर कहा क्या बात, अजीम बात कही जाने वाली है। कहा मेरे लिए बात कैसे हुई, मैं इस काबिल नहीं हूँ इस इज्जत अफजाई के, जो इज्जत अफजाई जो है मां मरियम के आने से अमल से हो गई है। याद रखें उस आमद के वसीले से, उस अच्छे काम के वसीले से जो मां मरियम ने आकर वहां पर पेश किया है, कहा गया क्योंकि कहा गया कि मेरे लिए बात कैसे हुई कि मेरे लिए बात कैसे हुई कि मेरे खुदावन की मां मेरे पास आई। ये देखें कलाम मुक़द्दस में कहा गया कि मेरे खुदावन की मां, कलाम की आयत है, ना कलाम से बाहर नहीं है। मेरे खुदावन की मां का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। बाद हम कहते नहीं वो खुदा की मां नहीं
के दिन के हवाले से जो इत्तबास सिर्फ उसे बयान किया जाए कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई है। रहम में लेना, रहम में रखना और जन्म देना जो औरत करती है वो माँ के रुतबे पर फायद होती है, क्योंकि माँ मरियम ने रहम में लिया, 9 महीने अपनी कोख में रखा, रहम में लिया, रहम में रखा और जन्म दिया। क्योंकि याद रखें माँ मरियम ने एक फरीजा अंजाम दिया है, इस मुश्किल मंसूबे को पार तकमील तक पहुंचाया, इसलिए माँ होने का दर्जा उसे दिया गया, रुतबा दिया गया, ओहदा दिया गया, ताकि उसे मुनासिब मकाम दिया जाए। आज अगर हम अपनी जिंदगी में माँ की शान को उस कदर हैसियत, उस मकाम, उस मर्तबे में नहीं रखते तो याद रखने की जरूरत है अज़्वे कलाम, हम कलाम पर अमल नहीं करते, इसलिए हम खुदा के और कलाम के गुनहगार होते हैं। इसलिए कलाम मुक़द्दस फरमाती है कि आज के दिन के कहा गया, अलिफ़बात कहती है मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई। हम जब कभी सूरह मरियम पढ़ते तो माँ की जगह कहते हैं यीशु की माँ, वो खुदावंद की माँ है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में बयान किया गया है। जाकर पढ़े लूका की इंजील उसका पहला बाब 39 से 45 आयत तक, हर शख्स जो पढ़ सकता है जाके पढ़े और इस बात को अपनी आंखों से देखे, अपने हाथों से छुए, उंगली निकाल कर देखे कि क्या लिखा गया है कि मेरे खुदावंद की, जोर से बोले मेरे खुदावंद की, इसलिए कहा गया कि मेरे खुदावंद की माँ है। याद रखें, और इसके लिए जब कहा गया कि मेरे खुदावंद की माँ है, वो दर हकीकत खुदावंद की माँ है। उसने अपने कोख में रखा है, उसे जन्म दिया है, उसकी परवरिश की है, उसको मुश्किल मरहल से गुजारा है और माँ के दर्जे के तमाम काम उसने किए। हम मरियम जी इस समझ पर देखें तो माँ है या नहीं, बड़े आगे निकल जाएंगे, मगर अज़्वे काम जो स्टेट फॉरवर्ड बात नजर आ रही है, लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई है। और इसी के साथ फिर इस बात क्या करती है जो फरीजा से दिया गया, जो काम से दिया गया, लिखा है क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची है, जैसे ही वो अल्फाज, वो बातें, वो ट्यून जो अदा की माँ मरियम के मुबारक मुंह से अदा हुई, जो लफ्ज अदा किए गए, जो अल्फाज का चुनाव किया गया, जैसे ही अलिफ बात के समाज से टकराती हैं तो क्या रूनमा वाकया होता है कि जैसी आवाज पहुंची है तो बच्चा मेरे बातन में खुशी से, कलाम में लिखा है खुशी से उछल पड़ा। माँ जानती है कि बदने मातम में बच्चा किस तरह अपनी खुशी का इजहार करता है और किस तरह ना खुशी का इजहार करता है, क्योंकि वो 9 महीने में कोख पे रखकर अपने खून से उसको जो है सेचती है, उसे परवरिश देती है, परवान चढ़ाती है, तरबियत देती है। और याद रखने की जरूरत है, जो माँ सोचती है वही बच्चा सोचता है, जो माँ खाती है वही वो बच्चा खाता है। इसलिए याद रखें माँ का रुतबा आला है, माँ का मकाम अजीम मकाम है, वाले रुतबे पर फायद है। कभी इस दर्जे को, मर्तबे को अपनी जिंदगी में कम ना करे, क्योंकि फरिश्ते उसे सलाम कर रहे हैं, अलिफ बात उसे कह रही है मेरे खुदावंद की माँ है, उसके कहने से जो है अल्फाज की अदायगी से किस तरह वाकयात रूनमा हो रहे हैं। और कहा गया मुबारक है वो जो ईमान लाई, मुबारक है जो वो ईमान लाई। अगर आज भी हम ईमान लाते हैं तो याद रखें ये तमाम वादे जो कलाम मुक़द्दस में किए गए, जो बातें कलाम मुक़द्दस में दिखाई गई है, हम सब की जिंदगी का हिस्सा बनती हैं और हम भी क्या चाहते हैं, मुबारक लाते हैं, मुबारक बन जाते हैं, क्योंकि जो ही बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। और इस तरह बहुत सी बातें इस वाक़े के साथ मुंसलिक। आज के दिन कलीसिया हमें बावर कराना चाहती है कि हम माँ की इज्जत और उसकी शान और उसके रतबे को अपनी जिंदगी में तस्लीम करें, और जो जो माँ मुक़द्दसा की शान को अपनी जिंदगी में रखता है, याद रखें वो कभी मुश्किल में नहीं पड़ेगा, कभी दुख में नहीं पड़ेगा, क्योंकि माँ उसके साथ है। और याद रखें जिसने अज़्वे कलाम अमल नहीं किया वो जिंदगी में दुख पाता है। लिखा है कलाम मुक़द्दस में, अब से लेकर हर ज़माने के लोग तुझे क्या करेंगे, मुझे मुबारक कहेंगे,
यहाँ तक कि हम सब मुबारक कहने भी जाओ कलीसिया में मौका फराहम करती है। आए खुदा से खास मदद चाहें जबकि बिल्कुल हम क्रिसमस के नजदीक है, चंद कदम पर है क्रिसमस। माँ की शान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, अपनी शख्सियत को तब्दील करें और इस बात जैसा किरदार करें, और फिर हमारी जिंदगी में जो है बड़े मौज आ सकते हैं, और फिर हमारी जिंदगी से ये अल्फाज अदा कर सकते हैं, अल कायर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए और उसका नाम क्या है? कदूस है। सब खड़े होकर अपने चीज देकर अरदास करें। रसूलों का किताब और यीशु मसीह का जो सत्य है और हमारा काम है, पूर्ण किसी की दोस्त के बेटा वाणी में से पैदा हुआ, उसने रहमत उसका चरण में उठाया, मुझको हुआ मर गया और सत्य का किसी को नहीं आसमान का चढ़ खुदा का भी किताब में बैठा वहाँ से जिंदा मुझे दिखाई पड़े मैं मानता हूँ आपके वक्त है तुम अपनी अपनी मुनाजात अपने खुदा के हुजूर पेश करें। दुआ करें आलमगीर कलीसिया के लिए कि खुदाए अजीम तमाम मसीहियों को खुशी सलामती अता करे ताकि इस खुशी को एक दूसरे के साथ बांट सकें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें पापा आज़म, बिशप साहिबान और काहनों की कुल जमात और मुबशराने अंजील के लिए कि खुदावंद इन्हें अच्छी सेहत और पाक रूह के फलों से नवाजे ताकि सिफ़ाए नबी की तरह अपनी कलीसिया को खुशी दे सकें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें आज की कलाम और पैगाम के लिए कि खुदावंद आज की कलाम के वसीले से तमाम दुखियों, लाचारों और तमाम गमज़दा खानदानों को खुशी और खुशहाली अता करे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आज हम खास दुआ करते हैं तमाम गरीबों, यतीमों और बेवाओं के लिए कि मेहरबान खुदावंद उनके लिए वसाइल पैदा करें ताकि खुशी और सलामती से खुदावंद का जन्मदिन मना सकें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। अमन, सुलह और सलामती के लिए दुआ करें कि सलामती का शहजादा पूरी दुनिया में अमन और सलामती की फिजा कायम करे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आज के दिन दुआ करते हैं वसीम राजा के खानदान के लिए, रॉयल विलियम के खानदान के लिए, जिनके खानदान की तरफ से मास की कुर्बानी है कि खुदा इस मास की कुर्बानी के वसीले से हर मुश्किल, हर परेशानी, दुख को इनकी जिंदगी से दूर करे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आज के दिन दुआ करते कैसर लाल तीनों के लिए जिन्हें खुदा ने अपने पास बुलाया, खुदा ने इस रूह को अपने पास कबूल करे, खानदान को तसल्ली से मालामाल करे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं वसीम राजा की सेहत और जिंदगी के लिए कि प्यारा खुदा अपने बच्चा को सेहत और जिंदगी से मालामाल करे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। भाई को खैर के रोजी रोजगार के लिए दुआ करें कि खुदा इसको रोजगार से मालामाल करे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते एडन और बैनन के लिए जो अपने जन्मदिन की खुशियां मना रहे कि खुदा को मुल्क की राज़ी अता करे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी पनाह ताकत तमाम शफ़क़त के से चश्मे जो दुआएं तेरे बच्चे ईमान और यकीन के साथ तेरी हज़ूरी में रखते हैं, वो तमाम कर जो हमारे दिलों में है कि कहीं और अनकहीं दुआओं को सुनो कबूल कर और बख्श दे कि उनका असर हम सब की ज़िंदगियों तक पहुँचे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। तेरे बंदे कर रहे
अजीजों दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा ताला के दाद के हुजूर में मकबूल हो। आमीन। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, बख्श दे कि वही रूह कुदस जिसने अपनी कुदरत से मुकद्दसा मरियम के बतन को पुर किया, कि नजरानों को पाक करे जो हम तेरे अल्तार पर पेश करते हैं, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें कि वाजिब और दुरुस्त है। ये वाक़ई वाजिब बना है मुनासिब है कुदस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। तमाम अंबिया उसकी बेशर्मी करते रहे। तुम्हारी माँ ने इंतहाई प्यार से उसे गोद में लिया। यूहन्ना ने उसकी आमद की खबर दी और उसके आने पर उसे लोगों को दिखाया। उसने ये फजल बख्शा कि हम खुशी के साथ उसकी पैदाइश के भेद का इंतजार करें, ताकि वो हमें हमेशा दुआ में सरगर्म और उसकी तमजीद में शादमान पाए। इसने फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हम्द व सना करते हैं, कदूस 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 खुदा है खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आने वाला परोशना, खुदा के बदले जो खुदा के नाम से आता है। आने वाला परोशना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझे ही से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज, ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए त्याग होकर आखिरी खाने के मौका पर रोटी दी। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी तो ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। है मेरे खुदावंद, है मेरे खुदा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया तो ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद है खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। तस्बाब हम तेरे बेटे के मरने और जीतने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आसी के साथ उससे इंतजार करते हैं। बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा आज़म फ्रांसिस, हमारे बिशप बैनी और अपने सब खातों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाई और बहनों पर भी नजर कर जो जीतने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। इस तमाम लोगों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कवारी मरियम मुक़द्दस यूसुफ उसका नहायत पाक शौहर मुबारक रसूलों से मुकद्दसों के साथ जिस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो। तो तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से
तेरी हम दो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में इजकाद मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में काबिल इज्जत और ताज़ीम शान है हमेशा से हमेशा तक। अज़ीज़ान पूरे ईमान भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ मांगे जिस तरह मसीह हमारे शहादत में हम सबको सिखाया है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्ज़दार को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, और हमें आज़माइश न पड़ने दे, मैं तो पैसे चाहता। ऐ खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं सब बदियों से बचाए दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पुराने मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाहत को तुझे जलाल हमेशा करेंगे। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर उसे वो सलामती का हाथ बख्श तो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदा की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदा की सलामती के एक दूसरे के साथ बांटे। ऐ खुदा के बड़े, तुझे जहाँ के गुनाहों को उठा दिया जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बड़े, तुझे जहाँ के गुनाहों को उठा दिया जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बड़े, तुझे जहाँ के गुनाहों को उठा दिया जाता है, हमें इस्लाम की हिदायत कर। अजीजों, ये है हमारा खुदा यीशु मसीह, खुदा का बेटा, जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हम सब जो बड़े के इस खास सियाफत में बुलाए गए हैं। आमीन। और बरकत के लिए बोलेंगे। हम दुआ मांगे। ऐ कादिर मुतलक खुदा, हम अपनी अब्दी निजात की ज़मानत यानी मसीह खुदावंद का बदन और खून लेकर तुझसे इल्तिजा करते हैं कि जितनी नज़दीक हमारी निजात की ईद आ रही है, हम दीनदारी और अकीदतमंदी के साथ उतनी ही ज़्यादा तरक्की करते जाएं, ताकि लायक तौर पर तेरे प्यारे बेटे की पैदाइश का दिन मना सके, कि तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। आखिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, खुदा की खुशी और सलामती में जाएं। खुदा का शुक्र।